राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 100 साल पूरा होने के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और पीएसी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि 1920 में मोटोंग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद अंग्रेजी राज्य में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की स्थापना की गई थी, जिसके बाद इसका लगातार विकास हुआ और इस साल यह समिति अपना 100वां स्थापना दिवस मना रही है। अपने अभिभाषण में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जनता संसदीय समिति के माध्यम से सरकार के ऊपर निगरानी रखती है और आज भी इसकी प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि पीएसी ने अपने साथी समितियों के साथ सरकार पर सीधी नजर रखी है। यह सभी समितियों से पुरानी और अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस समिति की सदस्यता का सपना हर सांसद को होता है। It is with a feeling of joy and pride that I join you in celebrating the historic occasion of the centenary of the Public Accounts Committee of the Parliament of India. My congratulations to you and all citizens on the completion of 100 years of a very crucial institution of our democracy. In a democracy, Parliament is the embodiment of the people's will. Various parliamentary committees work as its extension and enhance its functioning. It is a welcome division of labor as they allow the houses to discuss and debate all issues, while select groups of the members of parliament can devote more focus on select matters. The parliamentary committees in general and the Public Accounts Committee, or PAC in particular, ensure administrative accountability of the executive towards the legislature. Without them, a parliamentary democracy would be rendered incomplete. It is through the PAC that citizens keep a check on the government finances. Ladies and gentlemen, this day is a landmark in the evolution of our democratic systems. The Committee on Public Accounts was first constituted in 1921 after the Montauk-Chelmsford reforms, making it the oldest parliamentary committee. In those days, of course, the committee had a different mandate. After independence, its role changed and it continued to evolve. Initially, it was headed by the finance minister, but after the Constitution of India came into force on 26 January 1950, it became a parliamentary committee functioning under the control of the Speaker of the Lok Sabha, who appointed a chairman from amongst the members of the lower house elected to the committee. The change signaled the fact that the committee would now keep tabs on the state's financial transactions, not on behalf of the government, but on behalf of the people. Ladies and gentlemen, numbers and figures keep changing, and so do bookkeeping methods. But the philosophy of public accounts has not changed from the time of Kautilya. In his great treatise, Arthashastra, there is not only a chapter devoted to treasury, source of revenue, accounts and audit, but there is also detailed guidance provided on responsibility of accounts officers. This event and the conferences to be held along with it would provide an ideal platform for discussion of ways to make the executive more accountable and thus to improve people's welfare. To all of you, my best wishes for all your endeavors. The development that all nations aspire is all about mobilization and
availability of precious resources and their effective utilization. What differentiates the development and the developing economies is this capital base and also its best use. Highlighting the importance of resources, the renewed Kautilya said more than 2000 years ago, the book Ardhashastra, that Kosh Purva Sarvarambha are all state activities depend first on the treasury. Hence, he argued, utmost care should be bestowed on matters relating to treasury and include a chapter on budgets, accounts and audit. 2000 years ago. About 35 years back, the then Prime Minister, Sri Rajiv Gandhi, noted that every rupee spent, only 16 paise goes to the people. It was a well-meaning statement, not to defame anybody. The idea is to stress on the importance of reaching out to the people. It was taken as a telling commentary on the management of public finances, and since then, no such fresh quantification has been made in public. This brings us to the subject of the Public Accounts Committee of Parliament, which is now in its 100th year in the service of the cause of the nation. PAC, along with Public Estimates Committee and the Public Undertaking Committee, constitute the triad of Parliament vigilance over a wide range of government activities and the attendant expenditure. Public Accounts Committee is the oldest and the mother of all committees of Parliament. Its role and importance could be gauged from the fact that it is a dream of every member of the Parliament to be on this committee. Now we have the leader of the largest party in Lok Sabha as the chairman. This is a good tradition, and this tradition should be continued in its letter and spirit, not only in the center but also in all states. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री, पुष्कर धामी, विभिन्न मंत्री और जन समुदाय एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का भी प्रतीक है। इसलिए राज्य का विकास केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपके स्नेह, आपका आशीर्वाद, ये आशीर्वाद का प्रसाद पाकर हम सभी अभिभूत है। उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज
भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। भाइयों और बहनों, इस देवभूमि में श्रद्धालु भी आते हैं, उद्यमी भी आते हैं, प्रकृति प्रेमी सैलानी भी आते हैं। इस भूमि का जो सामर्थ्य है उसे बढ़ाने के लिए यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत आज देवप्रयाग से श्रीकोट और ब्रह्मपुर से कोडियाला वहां के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। हरिद्वार रिंग रोड परियोजना से हरिद्वार शहर को जाम की बरसों पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी। इससे कुमाऊं क्षेत्र के साथ संपर्क भी और आसान होगा। इसके अलावा ऋषिकेश की पहचान हमारे लक्ष्मण झूला, ये लक्ष्मण झूला पुल के समीप एक नए पुल का शिलान्यास भी आज हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ साझेदारी में रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित MSME कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करने और नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का निर्माण करने और इस तरह देश की सुरक्षा और प्रगति में योगदान करने का आह्वान किया। राजनाथ सिंह ने MSME और SIDM से जर्मनी के मित्तलस्टैंड की तर्ज पर भारत में एक औद्योगिक आधार बनाने का आग्रह किया, जिसे धातु उपकरणों के निर्माण के लिए पूरी दुनिया ने मान्यता दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि लगातार बदलते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए सरकार रक्षा में आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह कहते हुए कि इस क्षेत्र में MSME की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय निर्माता और उनसे जुड़े MSME देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। डिफेंस इंडस्ट्री को दिए जा रहे कॉन्ट्रैक्ट की संख्या में वृद्धि के रूप में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इंडियन IDMM कैटेगरीज की खरीद को प्रायोरिटी देने से लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का समर्थन करने तक हम उद्योग, शिक्षा जगत के साथ व्यापक पहुंच के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, क्वालिटी कंट्रोलर और यूजर के साथ कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट की शुरुआत भी कर रहे हैं। SIDM के साथ 500 से अधिक मेंबर्स इन्हीं नीतियों के परिणाम है। पिछले 7 वर्षों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट का 38,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाना इन्हीं पॉलिसीज का ही है परिणाम है और लगभग 12,000 MSMEs का डिफेंस सेक्टर से जुड़ना ये इन्हीं के परिणाम है। आज डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। यह सब इन्हीं के परिणाम है। और आप सभी संभवतः जर्मनी के मित्तलस्टैंड के बारे में अवगत होंगे। मित्तलस्टैंड जो वहां का जाना माना इंडस्ट्रियल बेस है और जहां की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का लोहा पूरी दुनिया ने भी इसे माना है। इन सब रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव का जिक्र मैं यहां इसलिए कर रहा हूं कि आप सब इस बात पर विचार करें कि क्या हम इंडिया का मित्तलस्टैंड क्रिएट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हम ये जरूर कर सकते हैं और एक दिन हम इसे करके रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। SIDM और यहां उपस्थित आप सभी MSMEs के रिप्रेजेंटेटिव्स की इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका
होने वाली है। हमारी जितनी भी एमएसएमईज हैं उनसे आग्रह है कि आप लोग अपनी और ताकत के साथ सामने आएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, नई नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स लाएं। आप ये कतई न सोचें आपके बिजनेस का साइज कुछ मामलों में छोटा है तो आप बेहतरीन टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं कर सकते हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं तैयार कर सकते हैं, ऐसा न सोचें। आज दुनिया में छोटी घड़ी से लेकर बड़े जहाज तक जितनी भी छोटी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं उनकी शुरुआत किसी समय लो स्केल पर ही हुई थी। ऐसे में आप भी डिफेंस टेक्नोलॉजीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके आने वाले समय में अपनी और राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति का मार्ग प्रशस्त आप कर सकते हैं। और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि लार्ज इंडस्ट्रीज और एमएसएमई एक दूसरे के को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर डिजाइन डेवलपमेंट के लिए बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, यदि डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स की सप्लाई के लिए एमएसएमईज हैं। दोनों के बीच फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। दोनों मिलकर हमारी सिक्योरिटी और देश की इकोनॉमिक कंडीशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक बार फिर आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार पूरी तरह से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और आगे बढ़ रही है। मैं इस कॉन्क्लेव की सफलता के लिए पुनः एक बार अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, लेकिन गवर्नमेंट के इंटेंशन पर क्वेश्चन मार्क कहीं से लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतनी बात मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता सेनानी टंट्या भील के श्रद्धांजलि दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को आज संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में शहीद टंट्या भील को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टंट्या भील ने अंग्रेजों के दोहन और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और हमेशा अपनी जनता का साथ दिया। यही कारण था शहीद टंट्या को आदिवासियों द्वारा मामा कहकर बुलाया जाता था। आज भी कई आदिवासी इलाकों में बच्चों के विवाह के पूर्व पहला न्योता टंट्या मामा को दिया जाता है, जो जनता के हृदय में शहीद टंट्या के बलिदान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। सबसे पहले इस धरती को प्रणाम, बड़दा अहीर की पावन धरती को प्रणाम, जहां टंट्या मामा ने जन्म लिया। और ये वो धरती है, अंग्रेजों में हिम्मत नहीं थी कि फांसी के बाद जननायक क्रांति सूर्य टंट्या भील के शरीर को वो लोगों को सौंप पाते, और इसलिए यहां उनके पवित्र पार्थिव शरीर को वो डाल के चले गए। हमारे ऐसे टंट्या मामा जिन्होंने शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और अंग्रेज जिन्होंने इस धरती पर कब्जा कर लिया था, भारत माता के पैरों से गुलामी की जंजीरें काटने के लिए हथियार उठाए टंट्या मामा ने। वो वीर बहादुर क्रांति सूर्य, जिसके नाम से इंग्लैंड तक में अंग्रेज घबराते थे, वो वीर टंट्या भील के जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने अलग टंट्या पुलिस बनाई, और वो टंट्या पुलिस भी टंट्या मामा को नहीं पकड़ पाई।
तब एक गद्दार को मिला के अपनी मोहबोली बहन को राखी बांधने आए थे टंट्या भील। अंग्रेज वैसे नहीं पकड़ पाते, लेकिन एक गद्दार ने गद्दारी की और उसी ने पकड़वा दिया। ऐसे टंट्या मामा जिन्होंने हथियार इसलिए उठाए कि अंग्रेज शोषण करते थे, खून चूसते थे, और अंग्रेजों का साथ देने वाले जो लोग खून चूसते थे, जनता का, गरीबों का, आदिवासी भाई बहनों का, उनके खिलाफ हथियार उठाए और जनता से लूटा गया माल वो वापस लेते थे कब्जा करके, लेकिन एक पैसा कभी नहीं रखा। अनाज और रुपया बांट देते थे गरीबों में, और इसलिए तो लोग प्यार से उन्हें मामा कहने लगे। सचमुच में वो भारत माता के ऐसे वीर सपूत कि जिन पर हमें गर्व है। टंट्या मामा, आपके चरणों में प्रणाम है। धन्य है ये धरती जहां तुमने जन्म लिया, धन्य है ये समाज जिस आदिवासी समाज में तुमने जन्म लिया। सचमुच में अद्भुत वीर मामा की मूर्ति जिनकी हम पूजा करते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय, बिना टंट्या मामा की पूजन के यहाँ कोई शादी विवाह नहीं होता। पहली पत्रिका उनके चरणों में रखी जाती है, तब घर में शादी होती है। ये जनता उनको पूजती है, भगवान मानती है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, जिन लोगों ने लंबे समय इस देश पे राज किया, मध्य प्रदेश पे राज किया, कांग्रेस जैसी पार्टी, आज मैं पूछना चाहता हूं उनसे, तुमने टंट्या मामा की इस पवित्र धरती को कभी प्रणाम क्यों नहीं किया? तुमने टंट्या मामा की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई? तुमने टंट्या मामा का पाठ इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाया? तुमने बड़दा अहीर जहां टंट्या मामा का जन्म हुआ, वहां कभी स्मारक क्यों नहीं बनवाया? एक खानदान को स्थापित किया कांग्रेस ने, केवल एक खानदान, उसी को महिमा मंडित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अरे जिनने जान दे दी वतन की खातिर, देश की खातिर, भारत माता की माटी को माथे से लगा के अपना लहू भारत माँ की माटी में मिला दिया, उनकी कभी याद नहीं आई तुम्हें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने तय किया है, हम गरीबों की और आदिवासी भाई और बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान चलाएंगे। और वो अभियान प्रारंभ करने मैं गवर्नर साहब के साथ इंदौर आ रहा हूं। एक बार फिर टंट्या मामा के चरणों में प्रणाम, उनके चरणों में श्रद्धांजलि। वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया और गोपाल राय ने एमसीडी बदलाव कैंपेन को आज दिल्ली में लॉन्च किया। इस अवसर पर बोलते हुए गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के सभी मंडलों में यह अभियान शुरू किया जाएगा और हर बूथ तक जाकर कार्यकर्ताओं को जनता तक बदलाव का संदेश पहुंचाना होगा। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को ही पार्टी द्वारा अहमियत दी जाएगी। एमसीडी में बदलाव के लिए आज से दिल्ली के अंदर शुरू हो रहे महाअभियान, लोगों को आम आदमी पार्टी के सदस्य बनाने का महाअभियान, लोगों को इस बदलाव का सिपाही बनाने का महाअभियान आज से हम शुरू करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। कल दिल्ली के सभी मंडलों पर बदलाव के इस रास्ता महाअभियान की शुरुआत मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में होना है। इसलिए असली लड़ाई तो ग्राउंड पर आपको लड़ना है और कल से वो महाअभियान ग्राउंड पे दिल्ली के अंदर सभी के सभी मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में शुरू होना है और उसकी मोर्चेबंदी कल से आपको करनी है। इसलिए आप मजबूत तैयारी के साथ अपने अभियान को आगे बढ़ाएं। इसलिए आपको वहां की जिम्मेदारी के लिए आज यहां आमंत्रित नहीं किया गया। दोस्तों, आज से ये जो एमसीडी में बदलाव का अभियान हम शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए हमें गली गली जाना है, हर बूथ के अंदर जाना है, हर मंडल के अंदर जाना है, हर वार्ड के अंदर जाना है, विधानसभा के अंदर जाना है, चारों तरफ जाकर के जनता को एक ही बात बतलाना है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर आपने एक होकर के दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार था, दिल्ली सरकार में जो भ्रष्टाचार था, उसे मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल को नेतृत्व दिया। अब एमसीडी में बदलाव का नंबर आ गया है, एमसीडी में बदलाव की जरूरत आ गई। इसलिए कल से पूरे दिल्ली के अंदर सभी मंडलों के अंदर ये सदस्यता अभियान के लिए कल एक दिन कैंप लगेगा, टेबल कुर्सी लगेगी जहां प्रचार करेंगे।
लोग आकर के वहां मेंबर बनेंगे। अगले 2 दिन उसी बूथ पर हमारी मंडल की पूरी टीम घर घर जाएगी। घर घर जाकर के एमसीडी में बदलाव लाने का संकल्प दिलाएगी, उनको आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाएगी और इस दिल्ली के बदलाव के महाअभियान में उनके भी हिस्सेदारी दिलाएगी। एक बूथ पर 3 दिन काम करना है। पूरे दिल्ली के अंदर जो स्वच्छता का महाअभियान चल रहा है, 50 लाख लोगों को आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाएंगे। और अब तक और इस बार भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से भ्रष्टाचार का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, एमसीडी में जमानत जब्त कराने का भी रिकॉर्ड तोड़ना है। आज सबको एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए यहां बुलाया है। कल से पार्टी का एक विशेष अभियान घर घर तक जाकर मेंबरशिप का शुरू हो रहा है। और जैसा जितने स्पष्ट शब्दों में और सख्त शब्दों में गोपाल जी ने बता दिया, निर्देश कर दिया कि इसमें चलेगा कैसे। ये चलेगा तो ऐसे ही कि कोई अपने आप को प्रदेश स्तर का नेता समझे या राष्ट्रीय स्तर का या जिला स्तर का या विधानसभा स्तर का टिकट का पक्का दावेदार समझे या उम्मीदवार समझे, पिछली बार का कंफर्म वाला हो या इस बार का सस्पेंशन वाला हो, जो अपने मंडल पे काम नहीं करेगा उसकी गिनती नेगेटिव में आनी है। आप दुनिया, जो गोपाल जी ने कहा बहुत अच्छी बात कही, बोले जहां काम करना है करो। आप प्रदेश स्तर पे काम कर रहे हो, आप उस काम में अगर कोताही करोगे तो आप वहां जवाब दोगे, लेकिन जहां आप रहते हो अगर उस मंडल पर काम नहीं करोगे तो इस पूरे मिशन में जवाब दोगे। तो बहुत अच्छे से एक एक आदमी ये मान के कि हमारे बिग ब्रदर देख रहे हैं, कोई ये ना सोचे कि नहीं मैं तो हाजिरी लगा के फोटो लगा के फेसबुक पे निकल जाऊंगा और अपने 3 लोग कर ही रहे हैं, फिर वो 3 लोग ही प्रेजेंट गिने जाएंगे, आप गिने नहीं जाओगे। गोपाल जी को, आदिल जी को, जो पूरी टीम इस मिशन पे लगी है, ऐसे हल्के में मत लेना कि फोर्स एक व्हाट्सएप पे फोटो भेज दोगे और एक फेसबुक पे पोस्ट डाल दोगे और यहाँ बैठे लोग मान जाएंगे वाह जी वाह बहुत बढ़िया, देखो ये तो मंडल वाला अपने मंडल पे खड़ा था। मंडल पे क्या काम किया उससे पता चलेगा। आप जहां रहते हैं, आप सब और हम सब मिलके पिछले 9 साल से देश में एक राजनीतिक आंदोलन चला रहा है। हमने पार्टी नहीं बनाई, आज भी आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है। और इस आंदोलन के हिस्से में 2 काम हैं। ये जो सदस्यता अभियान चला रहे हो या आगे एमसीडी में चुनाव लड़ेंगे, इन सब के पीछे कुछ मकसद है, कुछ सपने हैं और कुछ लक्ष्य हैं। तो 2 काम है मेन। एक तो इस देश की राजनीति को बदलना है। इस देश में कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई और भी कई पार्टियां आई। आज तक किसी भी पार्टी ने अपने आंदोलनकारी चरित्र से किसी पार्टी को, दूसरी को इन्फ्लुएंस नहीं किया, उसको फॉलो करने को प्रभावित नहीं किया। देश के इतिहास में केवल आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके चाल चलन को, जिसके काम करने के तरीके को, जिसके कार्यकर्ताओं के रहने सहने के काम करने के तरीके को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब नई पुरानी पार्टियां फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं। आपने बात की हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, हम लाल बत्ती खत्म करेंगे। आपकी सरकार बनी, आपकी आंदोलन से निकली सरकार पहले दिन से इस देश में लाल बत्ती खत्म करने वाली पहली सरकार थी। लोग देश में राजनीति में आके चप्पल जूते इसलिए घिसते हैं, अपने बैंक बैलेंस इसलिए खाली करते हैं, सारी लूट खसोट इसलिए मचाते रहे कि बस एक लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाए। आप लोग जब वो राजनीति में आए बोले लाल बत्ती खत्म कर दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। 2015 में पहली बार इस देश में वो 49 डेज वाली भी बनी, तब भी किया, पर मैं कह रहा हूं फुल फ्लेजेड सरकार बनी जिसने इस देश में लाल बत्ती कल्चर खत्म कर दिया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
भंग